वेलकम टू 12th स्टैंडर्ड. ऑफिशियली बोलूं या अनऑफिशियली, वेलकम टू 12th स्टैंडर्ड. ठीक है. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ फर्स्ट चैप्टर विच इज चैप्टर नंबर 1. We would be starting with that. Okay. I want people to be interactive very much so that who will be in charge if my voice is not clear? Okay, we are starting with the first chapter, which is chapter number 1. So that is reproduction in lower and higher plants. So that is our first chapter. It has to deal with what? It has to deal with plants. It is going to deal with plants. So in that, what we have to study? When we say the word reproduction, reproduction word means it is the process of production of young ones. Now those young ones are like the parents. Now I'll give you a simple example. Our parents have given birth to us, correct? तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कौन सा प्रोसेस किया? They have done the process called as reproduction. So reproduction is the process of production of young ones like parents. So here the new young ones which are getting produced, they are similar to those of the parents. Now when we say reproduction, see, एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ. अभी बिल्ली है, बिल्ली उसने पैदा किए, तो बिल्ली के छोटे बच्चे विच आर नथिंग बट किटन्स, वी नो. सो किटन्स प्रोड्यूस किया. सो किटन्स विल ग्रो एंड बी सिमिलर टू, किसको सिमिलर रहेंगे? दे विल बी सिमिलर टू कैट्स, करेक्ट? यस और नो? अभी जब भी हम लोग बोलते हैं ना रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो उससे क्या हो रहा है? रिप्रोडक्शन से ना कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज हो रहा है. कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज, इसका मतलब क्या है? सिंपल एग्जांपल ये है, क्या शेर जो है ना जंगल में रहता है ना, उनमें रिप्रोडक्शन कम हो रहा है. दैट इज वाई क्या हो रहा है? उन लोग में कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज नहीं हो पा रहा है, बिकॉज जो ऑर्गेनिजम्स बचे हैं दे आर नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस. So we have an important word over here. It leads to continuation of species as well as to maintain the continuity of life. Because if there is no reproduction among the tiger, so obviously life will not continue. Now, हर एक organism का, मेरी आवाज क्लियर आ रही है सबको? Yes or no? Yes, ma'am. Okay. Each organism has a different method of reproduction. Yes or no? So each organism has its own particular method of reproduction. Apur Patil, I am teaching chapter number 1 of 12th standard. You are in 12th standard now. Apur, clear आपको है? So each organism has its own particular method of reproduction. जब भी हम लोग रिप्रोडक्शन वर्ड बोलते हैं ना, तो इट इज फॉलिंग इन टू डिफरेंट कैटेगरीज. नाउ विच आर दोस टू कैटेगरीज? द फर्स्ट वन इज द asexual reproduction. As we hear the word asexual reproduction, what do we come to know? In our mind it comes that it involves only one parent. जब भी asexual reproduction बोलते हैं तो क्या होता है? उसमें खाली एक पेरेंट इन्वॉल्व है. बट जब हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, so in that we have two parents which are involved. So asexual reproduction is involving only one parent, whereas sexual reproduction is involving two parents. One is male and one is female. In sexual reproduction we have two parents, one is male and one is female. That is, one is male and one is female. So now we are going to see our chapter is getting divided into two. कौन सा two parts में divided रहेगा अपना chapter? Asexual reproduction और दूसरा क्या रहेगा? Sexual reproduction. Let us see. ये first page पे आपको पढ़ना क्या है एग्जाम के लिए? You got to study this part. ये part आप लोग को पढ़ना है. What is reproduction? So reproduction is the production of young ones like the parents. It is an essential process. Why? It leads to continuation of species. जिससे क्या होता है? Continuation of species होता है, as well as it helps to maintain the continuity of life. Am I clear? Yes or no?
तो ये डेफिनेशन आपको पढ़ना है. थैंक यू यश पवार. ओके, जसकौर, रिया, गणेश, फाइन. Now, which two kinds of reproduction we were seeing over here? Please somebody unmute their mic and tell me. कौन से आप notes send करोगे ना? Yes, Apurv dear, sure I'll be sending the notes. Not only for you, for the entire batch. Okay, Arkam, thank you. Apurv, आपने लिख दिया. Okay, so we have two kinds of reproduction, which is asexual reproduction and sexual reproduction. What is the difference between both of them? When we say sexual reproduction, it is biparental. Biparental means two parents are involved. And when we say asexual reproduction, it is uniparental. It is involving only one parent. One parent is involved, so it is uniparental. What is asexual reproduction? Is uniparental. Then sexual reproduction किसमें होता है? Sexual reproduction, it occurs in multicellular organism. अच्छा, मुझे ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने दो पहले. जब भी हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं ना, तो उसमें दो पेरेंट्स रहते हैं. एक होता है मेल और दूसरा होता है फीमेल. मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब भी आपस में फ्यूज होते हैं, तो उससे क्या बनता है? जाइगोट बनता है. सो ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, किसमें होता है? इट ऑकर्स इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म. किसमें होता है? मल्टी सेल्यूलर में. जबकि हम लोग जब भी एसेक्सुअल बोलेंगे, so it is uniparental. Uniparental means only one parent is involved. We have only one parent which is involved. So it is occurring in both unicellular and multicellular organism. मुझे एक चीज क्लियर करने दो. आपको ये समझ में आ रहा है? जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे ना, तो उसमें क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको जो एक चीज याद रखनी है ना, वो ये है that there is involvement of meiosis. Does anybody recollect what is meiosis? किसी को याद है meiosis क्या होता है? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में meiosis होता है. meiosis. meiosis वर्ड का मतलब क्या होता है? जब भी एट द एंड हैप्लॉइड सेल मिलेगा. वेरी गुड नाजरीन चौधरी, थैंक यू सो मच. meiosis मतलब क्या होता है? वन पेरेंट सेल. यस, जानवी तिवारी, यू आर ऑल्सो करेक्ट. आपने भी बराबर लिखा है, रिडक्शनल डिविजन. व्हेन वी सी द वर्ड meiosis, meiosis इन्वॉल्व्स फर्स्ट एक पेरेंट सेल से चार डॉटर सेल बनते हैं. फ्रॉम वन पेरेंट सेल वी हैव फोर डॉटर सेल्स व्हिच आर गेटिंग फॉर्म्ड. एंड अगर पेरेंट सेल डिप्लॉयड है, तो जो डॉटर सेल बनते हैं ना, वो कैसे रहते हैं? डॉटर सेल्स आर हैप्लॉइड. So diploid parent cell is going to produce haploid daughter cells. क्लियर है सबको ये? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में खाली मियोसिस होता है. क्यों होता है मियोसिस? वो आप याद रखो. दिस मियोसिस इज टेकिंग प्लेस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स. ये जो मियोसिस प्रोसेस है ना, ये क्यों होता है? इट इज टेकिंग प्लेस फॉर फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स. गैमेट्स के फॉर्म होने के लिए द प्रोसेस ऑफ मियोसिस इज इन्वॉल्व्ड. Is it clear everybody? So two parents are involved. मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में होता है, बिकॉज इसमें क्या होता है? मियोसिस होता है. मियोसिस का मतलब क्या है? जहाँ पे रिडक्शनल डिवीजन होता है. डिप्लॉयड पेरेंट सेल से क्या मिलता है हम लोग को? हैप्लॉइड डॉटर सेल. मतलब रिडक्शन हो रहा है. किसमें रिडक्शन हो रहा है? इन द क्रोमोसोम नंबर. so this is taking place during the formation of gametes. जब भी हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे, सेक्सुअल मतलब एसेक्सुअल बोलेंगे, तो वन पेरेंट इज इन्वॉल्व. इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेसिक कौन सा पॉइंट होगा? बेसिक पॉइंट विच विल ऑकर, जैसे यहाँ पे मियोसिस हो रहा था, वैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा आपके हिसाब से? बोलो. यस डियर्स, कोई बोलना चाहेगा? माइटोसिस. वेरी गुड रिया, वेरी गुड अपूर्व. एंड किसने अभी बोला, उसका नाम नहीं आया? सुमित पाल, वेरी गुड. इट इज माइटोसिस. Mitosis is going to be involved in the process called as asexual reproduction. So in this process of mitosis, what we are going to see, इसमें ना सीधा एक का क्या बनता है? दो. वन पेरेंट सेल से टू डॉटर सेल्स मिलते हैं. वन पेरेंट सेल से वी हैव टू डॉटर सेल्स. and then what we got to remember is that इसमें chromosome number remains the same.
तो ये जो माइटोसिस प्रोसेस है ना, ये दोनों में भी होता है. इट इज ऑकरिंग इन यूनिसेल्युलर ऑल्सो एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो. So this process of asexual reproduction occurs in both unicellular and multicellular organism because इसमें mitosis होता है and mitosis means the chromosome number remains the same. तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट हमने लिखा हुआ है, it takes place by occurring of male and female gametes, and in this what is happening is male and female gametes are not formed. ये अपना थर्ड पॉइंट था जिसमें मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर नॉट फॉर्म्ड. नाउ एक चीज आपको याद रखना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन is also called as amphimixis. I'm writing here a point. If you can see, this sexual reproduction is also called as amphimixis. एम्फी वर्ड का मतलब क्या होता है बच्चा लोग? एम्फी मीन्स, अरे याद आ रहा है आपके दिमाग में से कुछ सोचने पर? एम्फी मतलब एम्फीबियन याद आ रहा है? यस और नो? एम्फीबियन नाम से क्या समझ में आ रहा है? एम्फीबियन नाम से ये आ रहा है दिमाग में क्या? वो लैंड पे भी रहता है और कहाँ पे रहता है? वाटर में भी रहता है, राइट? तो यहाँ पे जब भी हम लोग एम्फी मिक्सेस बोलते हैं ना, तो यहाँ पे क्या होता है? दोनों का मिक्सिंग हो रहा है. एम्फी मतलब बोथ, एम्फी मतलब बोथ. देर इज मिक्सिंग ऑफ दी बोथ. बोथ मतलब कौन है? बोथ मतलब मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट. तो amphimixis मतलब mixing of the both male gamete and female gamete, whereas asexual reproduction is called as, amphi मतलब both था हाँ, और वैसे ही asexual reproduction को बोला जाता है. सबको सब कुछ क्लियर दिख रहा है? स्लाइड्स भी क्लियर दिख रहा है? ओके. इट इज एपोमिक्सिस. इसको एपोमिक्सिस बोलते हैं. एपोमिक्सिस. एपो मतलब विदाउट. एपो मीन्स विदाउट, विदाउट मिक्सिंग. आपको मैं ना एम्फी का मतलब क्या बताया था मैंने? एम्फी मतलब बोथ. वैसे ही एपो वर्ड का मतलब क्या होता है? एपो मतलब विदाउट मिक्सिंग. यहाँ पे देर इज नो मिक्सिंग ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट. तो मेल एंड फीमेल गैमेट बनता ही नहीं है, तो मिक्स कैसे होगा? आपको ये फोर्थ पॉइंट समझा सबको? यस और नो? ओके. यॉल, अच्छा, अपूर्व वांट्स मी टू रिपीट. अपूर्व पाटिल, आप माइक अनम्यूट करके बोलेंगे क्या रिपीट करना है मुझे, प्लीज. मैम फोर्थ वाला पॉइंट कुछ समझा नहीं. अच्छा अपूर्व, आपको फोर्थ पॉइंट में डियर क्या दिख रहा है? इतनी ग- एम्फीमिक्सिस. इतनी गंदी इतनी गंदी राइटिंग है मेरी के पढ़ने नहीं हो रहा है. नहीं 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 मैम, तो वर्ड बोलने के लिए नहीं आ रहा है. AMPHI, एम्फी मिक्सिस. हाँ, एम्फीमिक्सिस, यस. एम्फी वर्ड का मतलब क्या होता है? एम्फी मतलब बोथ. एम्फी मतलब बोथ. बोथ का मिक्सिंग होगा. बोथ मतलब कौन है? बोथ मतलब देर विल बी मिक्सिंग ऑफ दी मेल गैमेट मेल और एंड फीमेल. फीमेल गैमेट. मेल और फीमेल गैमेट दोनों का मिक्सिंग होगा. इस करके क्या बोलते हैं उसको? एम्फी मिक्सिस. मिक्सिस. ओके ओके मैम, थैंक यू. अभी एपो मिक्सिस वर्ड का मतलब क्या है? एपो मतलब विदाउट. एपो का वर्ड का दिख रहा है मीनिंग आपको? एपो वर्ड मीन्स विदाउट. देर इट इज विदाउट मिक्सिंग. अरकम चौधरी, आपका डाउट क्लियर होगा. अगर मिक्सिंग नहीं होगा तो यंग वन कैसा होगा, वो अभी हम लोग क्लियर करेंगे. ये तो हम लोग ने ना एकदम बेसिक डिस्टिंग्विश बिटवीन देखा, किसके बीच में? एसेक्सुअल और सेक्सुअल के बीच में डिफरेंस बिटवीन देखा. अभी हम लोग को एक एक डिटेल में पढ़ना है. एसेक्सुअल में क्या होता है और सेक्सुअल में क्या होता है, डिटेल में पढ़ेंगे ये चैप्टर में. चैप्टर इज वेरी नाइस एंड 12th स्टैंडर्ड सिलेबस इज ऑल्सो वेरी नाइस, प्रोवाइडेड यू स्टडी नाइसली. चलो, लेट्स मूव अहेड. आपको सब कुछ क्लियर दिख रहा है? आपका फर्स्ट लाइन कट नहीं हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है ना? ओके, थैंक यू.
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन. सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग ने पढ़ा that it is involving only one parent, so it does not involve fusion of two compatible gametes or sex cells. इसमें two compatible gametes और sex cells का fusion नहीं होता, मतलब मेल एंड गैमेट का फीमेल गैमेट का फ्यूजन नहीं होता. So it does not involve fusion of two compatible gametes or sex cells. ये इन्वॉल्व नहीं करता किसका फ्यूजन ऑफ टू कंपैटिबल गैमेट्स और सेक्स सेल्स. इसमें क्या होता है, इट इज रिजल्टिंग इन प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल प्रोजेनी. मैं एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ तो आप लोग को थोड़ा सा कुछ समझेगा. वैसे भी बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट है. अभी ये जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ये मैंने क्या बनाया, अंडू गुंडू की तरह दिख रहा है, ये कौन है, दिस इज आर अमीबा. दिस इज आर अमीबा. नाउ दिस इज कॉल्ड एज द पेरेंट सेल. ये अमीबा का क्या है, पेरेंट सेल. नाउ दिस अमीबा is going to divide कौन से प्रोसेस से, by the process of mitosis. So it is going to divide by the process of mitosis and उससे क्या बनेंगे, we'll have the formation of two daughter cells. तो दिख रहा है, इसके बाद डिविजन होने के बाद ये क्या बन गए, दो डॉटर सेल बन गए. दिख रहा है आपको, ये एक डॉटर सेल है अपना, एंड देन वी हैव अनदर वन, दूसरा ये वाला है, this is the another daughter cell. So this is called as ये एग्जाम्पल है asexual reproduction का. अर्कम आपको समझा कुछ बेटा? Okay, so asexual reproduction के end में what we will get, we will get production of genetically identical progeny. जो प्रोजेनी मिलेंगे ना हम लोग को, ऑफस्प्रिंग्स मिलेंगे. व्हाट इज प्रोजेनी वर्ड ओवर हियर? प्रोजेनी मींस जो चिल्ड्रन मिल रहे हैं, दे आर जेनेटिकली आइडेंटिकल. कैसे रहेंगे जेनेटिकली आइडेंटिकल, मतलब क्या होता है, दिस मींस दैट दे आर क्लोन्स. क्लोन्स रहते हैं, क्लोन्स. अभी दे आर प्रोड्यूस फ्रॉम अ सिंगल ऑर्गेनिज्म. कौन था आपने ये डायग्राम में सिंगल ऑर्गेनिज्म? इट वाज द अमीबा. ओके, पेरेंट सेल अमीबा था. एंड उसने क्या किया, इट हैज इनहेरिटेड द जीन्स ऑफ द पेरेंट. अभी ये स्लाइड में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, हम लोग को खाली फर्स्ट लाइन पढ़ना है जो मैंने ब्लैक में लिखा है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ टू कंपैटिबल गैमेट्स और सेक्स सेल्स. उसमें फ्यूजन नहीं हो रहा है. किसका फ्यूजन नहीं हो रहा है? टू कंपैटिबल गैमेट्स और सेक्स सेल्स का फ्यूजन नहीं हो रहा है. Asexual reproduction does not involve fusion of two compatible gametes or sex cells. ये प्रोसेस में क्या हो रहा है, इन दिस प्रोसेस, ये बाद में जो ब्लैक में लिखा है ना, वो आपको पढ़ना है जो ब्लैक में लिखा है. इट रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल प्रोजेनी. मतलब ये कैसे होते हैं, दे आर मॉर्फोलॉजिकल एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स. दे आर कॉल्ड एज क्लोन्स. क्लोन्स बोला जाता है इनको, बिकॉज दे आर मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स, they are called as clones. It is the process resulting in the production of genetically identical progeny from a single organism. सिंगल ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस होते हैं एंड उन लोग क्या करते हैं, इनहेरिट करते हैं जीन्स. कहाँ से इनहेरिट करते हैं जीन्स? फ्रॉम देयर पेरेंट. नाउ इसमें बहुत सारे तरीके हैं. जब भी हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं ना, तो एक मेथड नहीं, हम लोग को चार पढ़ने हैं. वी हैव टू स्टडी 4 डिफरेंट मेथड्स. Now I will teach you all about those 4 methods in detail and फिर हम लोग उसकी स्लाइड्स देखेंगे. पहले मैं आपको समझाती हूँ वो 4 मेथड्स के बारे में. ओके, फर्स्ट आई एम गोइंग टू टीच यू ऑल अबाउट दोस 4 मेथड्स. कौन से 4 मेथड्स है इसमें? 4 मेथड्स है. फर्स्ट वन है फ्रेगमेंटेशन, सेकेंड वन वाज बडिंग, थर्ड वन कौन सा था? थर्ड वन वाज, बोलो क्या था? थर्ड वन वाज Spore formation. स्पोर फॉर्मेशन एंड फोर्थ वन क्या था? Binary fission. Binary fission. Very good. So I have taken here a blank slide and ये blank slide पे हम लोग पढ़ेंगे पहला
So our first method is called as the fragmentation. अपना पहला मेथड है fragmentation. This fragmentation process takes place in Spirogera. किसमें होता है ये? Spirogera में होता है. Now in this Spirogera, when this Spirogera is given proper food and water, मतलब उसको क्या मिल रहा है? Proper food and water मिल रहा है, means it is under favorable condition. When it is getting favorable condition, that time what will happen? The body of the Spirogera is going to divide into numerous fragments. अभी देखो, if this is the Spirogera, if I have drawn, ये अपना Spirogera है जो मैं बना रही हूँ. This is my Spirogera which I am making. ये Spirogera कैसे होता है? This is unbranched. It is long. It is filamentous. Now it has got what? It has got these structures which are called as pyrenoids, and it has got chloroplast. ये अगर मैंने Spirogera का डायग्राम बनाया ना, जब भी इसको फेवरेबल कंडीशन मिल रहा है, फेवरेबल कंडीशन का मतलब क्या है? When it is getting proper food and water, तभी क्या होता है? ये जो Spirogera का बॉडी है ना, ये ब्रेक हो जाता है और क्या फॉर्म करता है? इट इज गोइंग टू ब्रेक एंड फॉर्म वेरियस फ्रैगमेंट्स. इसके टुकड़े होंगे और क्या बनेंगे? बहुत सारे फ्रैगमेंट्स बनेंगे. तो यहाँ पे ये Spirogera दिखा, ये देखो इसके टुकड़ा यहाँ पे हुआ, यहाँ पे इसका एक और टुकड़ा हुआ. तो दिस फिलामेंट, इट वाज अ पतला धागा, एक पतला धागा था, इस करके उसको फिलामेंट बोल रहे थे. फिलामेंट मतलब पतला धागा. एंड वो टूट के क्या बन गया? इट इज फॉर्मिंग, बहुत सारे फ्रैगमेंट बन रहा है. फिलामेंट टूट के क्या बन गया? बहुत सारा फ्रैगमेंट. तो देखो ये एक फ्रैगमेंट बना हमारा, फिर ये यहाँ पे मैंने ना एक और सेकेंड फ्रैगमेंट बना रही हूँ. ये फर्स्ट फ्रैगमेंट है, देन दिस इज आवर सेकेंड फ्रैगमेंट, एंड देन दिस इज आवर थर्ड फ्रैगमेंट. ये फर्स्ट फ्रैगमेंट है, ये सेकेंड फ्रैगमेंट है, एंड फिर यहाँ पे ये अपना थर्ड फ्रैगमेंट है. और ये जो फ्रैगमेंट्स होंगे ना, ये फ्रैगमेंट्स बाद में क्या होंगे? these fragments are going to divide and they are going to form new filaments. मतलब ये जो तीन फ्रैगमेंट दिख रहा है आपको, ये तीन फ्रैगमेंट बने, उसका आगे क्या होगा? ये आगे एक्सटेंड होंगे और क्या बन जाएंगे? न्यू फिलामेंट्स. तो देखो यहाँ पे these are going to extend and they are going to form. ये दिख रहा है, मैंने ब्लू कलर में किया है इनको. ये एक और नया Spirogera बन जाएगा, एक नया फिलामेंट बन जाएगा. मैंने ना दो वर्ड्स बोले, जब भी पतला धागा बोल रही हूँ ना तो इट इज फिलामेंट, फिलामेंट होता है. when it is breaking and it is forming टुकड़ा, that is called as what? That is called as fragment. am I clear ये दो वर्ड्स में? फिलामेंट एंड फ्रैगमेंट. So the filament of Spirogera, it divides into numerous fragments, and those fragments are going to form a new Spirogera. So at the end of this fragmentation, हम लोग को क्या दिखाई देगा? एक Spirogera के कितने बन गए? टुकड़े होने के बाद कितने बन गए? अरे बच्चा लोग ट्राई तो करो. ओके, कितने दिख रहे हैं आपको इसमें? ओके, तीन दिख रहे हैं, क्योंकि तीन फ्रैगमेंट बने, तो उससे क्या हो गया? तीन न्यू न्यू क्या बन गए? Spirogera बन गए. क्लियर है सबको? यस और नो? सो दिस वाज आवर फर्स्ट वन which is called as fragmentation. now we'll go to the second one which is called as budding. सेकेंड वाले को क्या बोलते हैं? बडिंग. अभी जो बडिंग प्रोसेस है ना, ये किसमें होता है? द प्रोसेस ऑफ बडिंग ऑकर्स इन ईस्ट. ये जो प्रोसेस है ना बडिंग का, ये किसमें होता है? इट ऑकर्स इन यूनिसेल्युलर फंगाई विच इज कॉल्ड एज ईस्ट. देखो ये ईस्ट बनाया हमने फॉर एग्जांपल. अभी ये ईस्ट में क्या होता है? सबसे पहले बॉडी पे क्या होता है? एक आउटग्रोथ या तो बर्ड आता है, एक आउटग्रोथ या तो बर्ड. देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ दिस आउटग्रोथ और बर्ड विच इज गेटिंग फॉर्म. और ये आउटग्रोथ और बर्ड जो ऊपर फॉर्म हुआ ना, दिस इज कॉल्ड एज आउटग्रोथ और बर्ड. अभी क्या होगा नेक्स्ट प्रोसेस में? जो पेरेंट का न्यूक्लियस है ना, पेरेंटल न्यूक्लियस, इट इज गोइंग टू डिवाइड इनटू टू, एंड वन ऑफ द न्यूक्लियस इज गोइंग टू माइग्रेट इन द बर्ड रीजन. तो अगर मैंने दिखाया ये पेरेंटल न्यूक्लियस है, ये पेरेंटल न्यूक्लियस डिवाइड हो गया इनटू टू, और एक न्यूक्लियस ना किधर चला गया?
one nucleus migrates कहाँ पे into the bud region, one nucleus migrates into the bud region. क्या बोला मैंने? parental nucleus divides into one nucleus migrates. कहाँ पे nucleus migrate हो रहा है? that nucleus is migrating in the bud region. देखो ये nucleus यहाँ पे migrate हो गया bud region में. Later on what will happen, this bud is going to derive the nutrition from the parent, and once it grows to a proper size, तभी ये क्या होगा, this bud is going to get detached and it is going to live as a separate individual. वो बाद में वो bud क्या होगा, detach होगा and it is going to live as a separate individual. तो ऐसे अगर हम लोग टेक्स्ट बुक डायग्राम देखेंगे ना, इफ वी सी द टेक्स्ट बुक डायग्राम, वी विल हैपन टू सी इज, हम लोग को दिखाई देगा ये नॉर्मल पेरेंट, ये पेरेंट सेल है, एंड देन वी कैन सी यहाँ पे हम लोग को दिखाई देंगे बहुत सारे, क्या दिखाई देंगे हम लोग को, ये जो बर्ड्स है ना वो अटैच दिखाई देंगे. रिया रावत कौन सा पॉइंट आप बोल रहे हो रिपीट करने के लिए? रिया रावत बेटा आप कौन सा पॉइंट बोल रहे हो रिपीट करने के लिए? ये जो आपको ब्लू कलर में दिख रहा है ना, ये अपना पेरेंट सेल होगा. दिस ब्लू कलर वन विल बी कॉल्ड एज द पेरेंट सेल. देखो मैं पूरा एक बार रिपीट करती हूँ बाद में. ये पूरा ये ब्लू कलर वाला इज द पीसी, पेरेंट सेल बोलेंगे. व्हाट इज पीसी? पेरेंट सेल. एंड यहाँ पे जो हम लोग को दिख रहा है ना, यहाँ पे दैट इज नथिंग बट दैट विल बी कॉल्ड एज द चेन ऑफ बर्ड्स. ये क्या दिखाई देगा हम लोग को? चेन ऑफ बर्ड्स. दिस इज द ग्रोइंग चेन ऑफ बर्ड्स. मेरी राइटिंग समझ में आ रही है सबको? नाजरीन, मेरी वॉइस ब्रेक होगी या कुछ भी होगा तो मुझे इमीडिएटली बताना है, ताकि फिर मैं कैमरा शट डाउन करूं. इट इज बिकॉज वो कंजम्पशन करेगा, वो इंटरनेट का मुझे श्योर नहीं है. ठीक है, सो मैं एक बार रिपीट करती हूँ. मैम, बडिंग ऑकर्स ओनली इन ईस्ट, ऐसा सुमित पाल ने पूछा. तो अभी जब भी मैंने ईस्ट का एग्जांपल दिया ना, ईस्ट, ध्यान से कान खोल के सब लोग सुनो. जब भी मैंने ईस्ट का एग्जांपल दिया, दैट इज यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. मतलब बडिंग अगर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में हो रहा है तो दैट इज एग्जांपल इज ईस्ट. व्हेन इट इज ऑकरिंग इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, वी हैव एग्जांपल एज हाइड्रा. तो ऐसा सिर्फ ईस्ट में होगा ऐसा नहीं है, और भी ऑर्गेनिजम्स हैं. एक पेरेंट सेल से कितना बर्ड बन सकता है बेटा? एक पेरेंट सेल से कितने भी बर्ड बन सकते हैं, वो फटाफट डिवाइड होते हैं और बहुत सारे डॉटर सेल्स बनाते हैं. दैट इज द प्रोसेस बाय बडिंग. एक्चुअल में क्या होता है देखो, जो मैंने यहाँ पे दिखाया ना, मैं एक बार रिपीट करती हूँ. पहले यहाँ से रिपीट कर रही हूँ मैं, फिर आप लोग के डाउट्स में सॉल्व करती हूँ एक एक करके. ओके, हियर आई हैड दिस एज माय पेरेंट सेल. ये मेरा पेरेंट सेल था. उस पे क्या आया? ये स्मॉल आउटग्रोथ आया. ये स्मॉल आउटग्रोथ को क्या बोलते हैं? दिस स्मॉल आउटग्रोथ इज कॉल्ड एज बड. दिस स्मॉल आउटग्रोथ इज कॉल्ड एज बड. नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ये सेकेंड फिगर में क्या दिख रहा है आपको? जो पेरेंटल न्यूक्लियस है ना, पेरेंट का न्यूक्लियस, वो क्या हो जाता है? डिवाइड करता है इनटू टू. The parental nucleus is going to divide into two, and one nucleus is going to migrate in the bud region. One जो nucleus है ना is going to migrate कहाँ पे? Into the bud region. नाजरीन, जब ये 11th के लेक्चर्स में क्लासरूम में थे, आप आए थे तभी? Yes, जब ma'am. मैंने लिया था लेक्चर क्लासरूम में, आप आए थे तभी? No, ma'am. ओके, तो मैंने अभी यहाँ पे क्या पॉइंट बोला? जो पेरेंटल न्यूक्लियस है ना, वो क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है किसमें? इनटू टू. एंड वन न्यूक्लियस कहाँ पे माइग्रेट होता है? इन दी बड. रिया, आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ? ये पेरेंट का न्यूक्लियस है जो डिवाइड हो रहा है इनटू टू,
and one nucleus is migrating कहाँ पे into the bud region. अभी ना बाद में क्या होगा, this bud is going to grow in size and then separate or detach. तो आपको लास्ट डायग्राम में क्या दिख रहा है, वी हैव द पेरेंट सेल and we have the chain of buds which are formed. We have what? We have the chain of buds which are getting formed. Okay, मैं इसके आगे अभी बढ़ती हूँ. yes or no बच्चा लोग? ये सबका फोटो नहीं आ पाएगा. जो मैंने बोला था ना मैं नोट्स भेजूंगी, ये सबका पिक्चर नहीं आ सकता है. मैंने जो पावर पॉइंट बनाया ना उसको मैं भेज सकती हूँ. ये सबके लिए ना आपको ना खुद ही निकालना पड़ेगा पिक्चर बच्चा लोग. फ्रेगमेंटेशन बडिंग के बाद थर्ड वाला कौन सा है अपना? Spore formation. Spore formation. थर्ड वन इज स्पोर फॉर्मेशन. अभी स्पोर फॉर्मेशन के बारे में ना मुझे थोड़ा सा एडिशनल इंफॉर्मेशन देना है आप लोग को. तो स्पोर फॉर्मेशन में जा रही हूँ अभी. पूरा स्लाइड हट गया, ठीक है. थर्ड वन इज स्पोर फॉर्मेशन. ना स्पोर फॉर्मेशन के बारे में. नाउ दीज व्हाट आर स्पोर्स? स्पोर्स का मतलब होता है ऐसे पार्टिकल्स होते हैं which when they fall on a surface they give rise to a new organism. जैसे अगर वो स्पोर्स एल्गी के हैं और वो न्यू सरफेस पे जाएंगे तो वहां पे न्यू एल्गे आएगा. अगर वो स्पोर्स फंगाई के हैं वो न्यू सरफेस पे जाएगा. जैसे फॉर एग्जांपल जय सावंत के सर पे गए तो वहां पे न्यू फंगस उगेगा जैसे कि डैंड्रफ. राइट जय सावंत? ओके, ही इज नॉट लिसनिंग. ओके, ही हैज गिवन मी अ थम्स अप. ओके, अपूर्व पाटिल, ये अभी गया क्या रिकॉर्डिंग पे? Okay, spore formation is done by two different organisms we are going to see over here. So spore formation में दो टाइप के spores होते हैं. The first is the non-motile spores. When we say non-motile, we mean that they cannot move. So non-motile spores are produced by fungi. Non-motile spores कौन बनाता है? Non-motile spores are produced by fungus. And those non-motile spores which are produced by fungi, those spores are called as conidia. क्या बोलते हो non-motile spores को? Those spores are called as conidia. So fungi produces non-motile spores. कैसे सेंटेंस कैसे फ्रेम करेंगे हम लोग? Fungi is producing non-motile spores which are called as conidia. Which are called as conidia. Fungi are producing non-motile spores which are called as conidia. तो जो नॉन मोटाइल स्पोर्स है ना उनका नाम क्या है? कोनिडिया है. एग्जाम्पल हम लोग कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं. बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास. वी कैन गिव द एग्जाम्पल ऑफ राइजोपस. we can give the example of aspergillus. So we have many examples over here. जैसे राइजोपस का एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है. कोई भी फंगस का एग्जाम्पल लिख सकते हो. तो हाउ आर दी स्पोर्स प्रोड्यूस्ड बाय फंगाई? दे आर नॉन मोटाइल स्पोर्स एंड दे आर कॉल्ड एज कोनिडिया. नाउ वेयर एज जो दूसरे हम लोग देखने वाले एल्गे, these algae are going to produce motile spores. Algae is going to produce motile spores, means the spores which can move. So algae produces motile spores which can move, and those spores are called as, वो spores को क्या बोलते? those spores are produced by algae and those spores are called as, एक simple example देती हूँ. हैव यू आपने जू देखा है? जू तो वहां पे क्या होता है, एनिमल्स इधर उधर मूव करते हैं, देखा है आप लोग ने? यस. तो जो भी हम लोग बोलते हैं ना मोटाइल स्पोर्स आर कॉल्ड एज, ऐसा याद रखने का. जू में जाके देखा एनिमल्स मूव हो रहे थे तो एल्गे इज प्रोड्यूसिंग. अच्छा नहीं देखा नाज़रीन, मैंने भी नहीं देखा, बट सुना तो होगा ना जू में एनिमल्स इधर उधर मूव करते हैं, पिंजरे में ही भले सही. So motile spores are nothing but zoospores, and non-motile spores are called as conidia.
motile spores are called as zoospores and non-motile spores are called as conidia. Now for motile spores, we have the example as Chlamydomonas. अभी Chlamydomonas का मैं इधर फिगर बना के दिखाऊंगी आपको तो समझ में आएगा. तो ये स्पोर फॉर्मेशन ना पूरा ही क्लियर हो जाना चाहिए यहाँ पे. तो दो टाइप के स्पोर्स बनते हैं. दो टाइप के स्पोर्स यहाँ पे बनते हैं. कौन से दो टाइप के स्पोर्स हैं? नॉन मोटाइल और मोटाइल. जो नॉन मोटाइल स्पोर्स है उनको हम लोगों ने पढ़ा, दे आर कॉल्ड एज कोनिडिया. जो मोटाइल स्पोर्स है उनको क्या बोलते हैं? जू स्पोर्स. एंड द एग्जांपल इज क्लाइम्डोमोनास. क्लाइम्डोमोनास. अर्कम मतलब क्या पूछ रहे हो? किस चीज का मतलब पूछ रहे हो आप? क्लाइम्डोमोनास का मतलब पूछ रहे हो आप अर्कम? क्लाइम्डोमोनास ना एल्गे का नाम है. जिससे हम लोग ने मोटाइल वर्ड का, मोटाइल मतलब अर्कम तेरे पास मोबाइल है? मोबाइल, मोबाइल लेके तू मूव करता है ना इधर से उधर. सो जब भी हम लोग मूव करते हैं इधर से उधर, उसी को मोबाइल या तो मोटाइल कहते हैं. और जो इधर से उधर नहीं जा सकते हैं उसको क्या कहेंगे हम? नॉन मोटाइल. अभी क्लाइम्डोमोनास के पास क्या होता है? क्लाइम्डोमोनास के पास होता है, देखो ये दिख रहा है आपको, ये मैंने इधर डायग्राम बनाया क्लाइम्डोमोनास का. ये क्लाइम्डोमोनास के पास ऐसे ऊपर टेंटिकल्स टाइप स्ट्रक्चर है. दीज आर नथिंग बट फ्लैजिला. दोज आर कॉल्ड एज फ्लैजिला. तो ये फ्लैजिला की मदद से क्या होता है? They are moving with the help of these flagella. Can I erase this and ask some people questions? कितना समझ में आया? तो I'll be more clear. Yes or no? जितने लोगों ने thumbs up raise किया है ना बच्चा लोग, उन्हीं को पूछूंगी. No dear, Euglena is very different. मेरा ना क्लाइम्डोमोनास थोड़ा सा स्लिम एंड ट्रिम हो गया. इट इज बिकॉज ऑफ लॉकडाउन एंड डाइटिंग इट इज बिकम स्लिम. क्लाइम्डोमोनास ना बहुत ही मोटा होता है. मैं यहाँ पे बनाती हूँ एक और बार. साक्षी राठौड़ मैं यहाँ पे बना रही हूँ. ऐसा मोटा होता है. और यहाँ पे फ्लैजिलेटेड ये स्पोर्स है. अभी ठीक है, ये डायग्राम दिख रहा है अभी? ये साक्षी. ओके. अभी मैं इसको रब करूं, मैं किसी को भी क्वेश्चन पूछ सकती हूँ. So spore formation is over. After that, our fourth is going to be binary fission. आप लोग ने जो लेना है इसका ले लिया है स्क्रीनशॉट. बिकॉज मैं आपको स्लाइड्स के नोट्स भेजने वाली हूँ. ये जो मैंने लिखा है बोर्ड पे ना, ये नहीं भेज पाऊंगी. अनफॉर्चुनेटली ये सब सेव नहीं हो रहा है मेरे पास. ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज बाइनरी फिशन. जाऊं मैं नेक्स्ट टॉपिक पे? How many participants do we have? We have only 70. Okay. What is your strength, बच्चा लोग? आप लोग की स्ट्रेंथ कितनी है क्लास की? ओके. मैं नेक्स्ट पे जा रही हूँ. नेक्स्ट वन इज द बाइनरी फिजन. नेक्स्ट वन इज बाइनरी फिजन. जब भी हम लोग बाइनरी फिजन बोलते हैं ना, बाइनरी फिजन, बाइनरी वर्ड का मतलब क्या होता है? बाइनरी वर्ड मीन्स टू. दो, दो होता है. बाइनरी मीन्स टू. एंड फिजन वर्ड का मीनिंग क्या होता है? टुकड़ा. फिजन वर्ड का मतलब क्या होता है? टुकड़ा. दो में टुकड़ा होना, दैट इज कॉल्ड एज बाइनरी फिजन. जब दो में टुकड़ा होता है ना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? बाइनरी फिजन.
दो में टुकड़ा होता है, दैट इज कॉल्ड एज बाइनरी फिजन. ओके, क्लियर है? तो यहाँ पे वी हैव 3 डिफरेंट एग्जांपल्स जो आपको देखना है. बाइनरी फिजन कैन बी इरेग्युलर. दिस इरेग्युलर बाइनरी फिजन is occurring in amoeba. It can be transverse or it can be longitudinal. ये आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है. yes or no everybody? yes or no? okay, यश पवार प्लीज अनम्यूट योर माइक. और क्या पढ़ा है बताइए. सेजल जादव आप बताओ, इरेग्युलर, ट्रांसवर्स एंड लॉन्जिट्यूडनल का मीनिंग क्या पढ़ा आप लोग ने? एनीबडी रिमेम्बर्स? इफ यू डोंट रिमेम्बर तो मैं बता देती हूँ. इफ यू डोंट रिमेम्बर प्लीज टेल मी. पैरामीशियन में ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन होगा और यूग्लिना में लॉन्जिट्यूडनल. okay, irregular binary fission, the example is going to be our amoeba. Example is going to be our amoeba. Because amoeba का shape irregular है, so it divides in any plane. It divides in any plane because the shape of the amoeba is irregular. When we say transverse, transverse word का मतलब क्या होता है? horizontal. Transverse word का मतलब क्या होता है? horizontal. Horizontal division and it takes place in paramecium. किसमें होता है ये? paramecium में होता है. So in paramecium, if this is the structure of paramecium, तो इसमें division कैसे होता है? horizontal, which is transverse division. It takes place in paramecium. Whereas if I draw the structure of euglena, euglena का structure ऐसा होता है somewhat. ठीक है, this is my euglena. This is the euglena. इसमें कौन सा division होता है? There is vertical division in this. There is vertical division in euglena. तो जब भी हम लोग लॉन्जिट्यूडनल बोल रहे हैं, लॉन्जिट्यूडनल मीन्स वर्टिकल. लॉन्जिट्यूडनल वर्ड का मतलब क्या होता है? इट्स वर्टिकल. एंड व्हेन वी आर सेइंग ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स वर्ड मीन्स हॉरिजॉन्टल. so we have transverse division in paramecium. we have longitudinal division किसमें? in euglena. क्लियर है ये सबको? बाइनरी वर्ड का मतलब क्या था? टू. टू में डिविजन होना. सो ट्रांसवर्स वाज इन पैरामीशियम एंड देन लॉन्जिट्यूडनल जो वर्टिकल डिविजन है ना, दैट इज टेकिंग प्लेस इन किसमें? इन यूग्लिना. अरकम, यू आर द पर्सन जो लास्ट बेंच पे बैठता था, वही हो क्या जिसको मैंने फर्स्ट लेक्चर के बाद आगे लिया था? बोलो, वही है क्या? मैं लास्ट में ही बैठा था. ओके 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 ओके. कौन था आपके बाजू वाला? उसका नाम क्या था? ठीक है, लेट अस मूव अहेड. बाइनरी फिजन के बाद, okay, now binary fission. We with this binary fission we complete the 4 types of asexual reproduction. बाइनरी फिजन के साथ हम लोग ना 4 टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो रहा है. कौन सा 4 टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है? फर्स्ट वाला हम लोग ने देखा था बस फ्रेगमेंटेशन. सेकेंड वन वाज बडिंग. थर्ड वन वाज स्पोर फॉर्मेशन. एंड फोर्थ वाला कौन सा था? बाइनरी फिजन. फोर्थ वन क्या था? बाइनरी फिजन. So let us see this on slides now and we'll wind up with this. Okay, fragmentation में क्या दिख रहा है? fragmentation में, fragmentation में what we can see is this is multicellular organism. जो multicellular organism है ना, वो क्या कर सकता है? It can divide into many fragments due to one or other reasons. क्यों डिवाइड कर सकता है into many fragments? due to one or other reasons. So we have multicellular. एक सेकेंड ना, ये जरा
Okay. Multicellular organism can break into fragments due to one or other reasons. बट ये कभी होगा, मैंने एक चीज बताई थी एक्स्ट्रा आप लोग के लिए. क्या बताया था मैंने आप लोग को एक्स्ट्रा इसके बारे में? In lack of food. लैक ऑफ फूड बताया था मैंने. मैंने क्या बताया था? ओके नाजरीन, मैंने क्या बताया था? Favorable condition. यस, ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन. मीन्स व्हेन इट इज गेटिंग प्रॉपर फूड एंड वाटर. और बाद में ये फ्रैगमेंट्स क्या होंगे? These fragments grow into new individual. ये fragments किसमें grow होंगे? They will grow into new individual. ठीक है. उसके बाद में ना यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है आपको. This is the first one which is the parent one. This is the parent spirogera. और बाद में डिवाइड होके क्या बन रहा है? These are forming the daughter spirogera. ये पेरेंट सेल है, ये पेरेंट स्पाइरोगेरा. उससे क्या बन रहा है? ये सब कौन है? डॉटर स्पाइरोगेरा. क्लियर है सबको? Okay, we are moving to the next one. Budding. Budding किसमें देखा था? Budding is the most common method किसका? Of asexual reproduction in unicellular organism. जैसे एग्जाम्पल क्या दिया था? Yeast. तो budding is the most common asexual reproduction इसमें in unicellular organism. Example is yeast. Usually it takes place. कैसे take place होता है? During favorable condition. Usually by producing one or more outgrowths. Outgrowth का मतलब क्या होता है? This outgrowth is called as bud. The outgrowth is called as bud. These buds on separation will develop into a new individual. ये जो buds होते हैं ना, ये separation होने के बाद क्या करते हैं? They are forming the new individual. क्लियर है सबको? ओके, थर्ड वन आफ्टर दिस बडिंग. हम लोग थर्ड वन देखने वाले हैं. थर्ड वन विच वी आर गोइंग टू सी इज नाजरीन चौधरी का. क्यों इसका मेन पे आ रहा है? नाजरीन आपका माइक वो है क्या? एक्टिव स्पीकर विंडो व्यू. आई शुड बी दी एक्टिव स्पीकर ना. ओके, यहाँ पे ग्रोइंग चेन ऑफ बर्ड्स दिखाई दे रहा है. नाउ स्पोर फॉर्मेशन. यहाँ पे आपको दिख रहा है क्लाइम्डोमोनास है. क्लाइम्डोमोनास में क्या दिख रहा है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. कैसे हो रहा है? बाय फ्लैजिलेटेड. फ्लैजिलेटेड मतलब इन सब में फ्लैजिला है. दे हैव गॉट स्ट्रक्चर्स व्हिच आर कॉल्ड एज फ्लैजिला. And they are motile zoospores, which are spores which can move, which can grow independently. किसमें? Into new individuals. किसमें grow होंगे independently? Into new individuals. And the example for that is Chlamydomonas. I am going to ask this spelling next lecture में. हाँ, मुझे Chlamydomonas का spelling सब लोग बताएंगे. It is CHLAMYDO monas. Chlamydomonas. अभी ना इसमें आपको एक चीज दिख रहा है. इसमें उसके बारे में नहीं बताया. किसके बारे में? फंगाई के बारे में नहीं बताया. मैंने आपको फंगाई के बारे में क्या बताया था? मैंने आपको फंगाई के बारे में क्या बताया था? अर्कम. ओके जानवी, आपने बोला नॉन मोटाइल स्पोर्स बनाते हैं. Fungus is Fungi. producing Arconida, example Aspergillus. हाँ, कोई भी हो सकता है. एग्जाम्पल एस्परजिलस हो सकता है, राइजोपस. यहाँ पे आपको स्लाइड में एग्जाम्पल ना पेनिसिलियम का दिख रहा है. देर इज एग्जाम्पल ऑफ पेनिसिलियम. तो अदर मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व जो बाइनरी फिजन होता है.
इसमें इन अमीबा, पैरामीशियम, इनमें यूग्लिना मेंशन नहीं किया है उन्होंने. देन देर इज कोनिडिया फॉर्मेशन, इसमें इन पेनिसिलियम. कोनिडिया का मतलब है नॉन मोटाइल स्पोर्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, which are called as conidia, non-motile spores. And gemule formation in sponges. Gemule formation in sponges. अभी gemule formation क्या होता है वो मैं बता रही हूँ. For that I want everybody to pay attention please. जब भी मैं gemule बता रही हूँ उसका मीनिंग क्या है. People are writing down gemule का मतलब. Gemule word का मतलब होता है they are nothing but they are internal buds. जो भी देखो, एक्सटर्नल बर्ड को हम लोग बडिंग बोलते हैं, ठीक है. देन व्हाट आर इंटरनल बर्ड्स कॉल्ड एज. इंटरनल बर्ड्स आर कॉल्ड एज गेम्यूल्स. तो दे आर नथिंग बट गेम्यूल फॉर्मेशन होता है. कहाँ पे हो रहा है गेम्यूल फॉर्मेशन. दैट गेम्यूल फॉर्मेशन इज टेकिंग प्लेस इन स्पॉन्जेस. तो गेम्यूल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस कहाँ पे. इन स्पॉन्जेस. आपकी स्क्रीन बराबर है या आपको कुछ छुप रहा है. ओके. ये जो डायग्राम्स दिख रहे हैं आप लोग बताओगे फर्स्ट डायग्राम किसका है. Spore formation. वेरी गुड. स्पोर फॉर्मेशन बट किसका बेटा. Fungi. ओके फंगाई का है स्पोर फॉर्मेशन. फंगाई का दिस इज दी किसका डायग्राम स्पोर स्पोर फॉर्मेशन का दिख रहा है आपको ये. दिस इज द डायग्राम फॉर राइजोपस. ये डायग्राम किसका है. राइजोपस का है. ठीक है. अभी उसके बाद में ना हम लोग देखने वाले हैं ये जो नीचे सेकेंड डायग्राम दिख रहा है ना. वो सेकेंड डायग्राम क्या है. सिंपल बाइनरी फिजन. जो किसमें हो रहा है. अमीबा में हो रहा है. वो किसमें हो रहा है. अमीबा में. इट इज टेकिंग प्लेस इन अमीबा. एंड जो आपको ये राइट हैंड साइड में ये फर्स्ट डायग्राम दिख रहा है ना. इट इज गेम्यूल फॉर्मेशन. किसमें हो रहा है गेम्यूल फॉर्मेशन. गेम्यूल फॉर्मेशन इज टेकिंग प्लेस इन. एग्जाम्पल क्या दिया था मैंने बच्चा लोग बोलो. गेम्यूल फॉर्मेशन एग्जाम्पल वॉज स्पॉन्जेस. आपको दिख रहा है वहां पे माइक्रोपाइल है. इनर मेम्ब्रेन आर्कियोसाइट्स दिख रहा है आपको. दोज आर नथिंग बट दोज आर इंटरनल बर्ड्स. उसको क्या बोलेंगे हम लोग. इंटरनल बर्ड्स. ट्रांसवर्स बीएफ ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन एग्जांपल पैरामीशियम दिया है. देखिए पेरेंटल न्यूक्लियस कैसे डिवाइड हो रहा है हॉरिजॉन्टली. So let us move to the next one. Vegetative propagation. Now vegetative propagation या vegetative reproduction के बारे में आपको क्या पता है बताइए. गेम्यूल फॉर्मेशन का मोटाइल में होता है कि नॉन मोटाइल में होता है. अच्छा. जानवी प्लीज अनम्यूट योर माइक डियर. Yes, ma'am. When we are saying gemule formation word का meaning क्या बताया मैंने. Those are nothing but those are internal buds. What are they. They are internal buds. तो वो buds जो है ना वो internally form होंगे ना. और बाद में क्या होगा. आपको याद है somewhat like multiple fission Yes, जो ma'am. किसमें हो रहा था. अमीबा में हो रहा था. Amoeba. Similarly in sponges also they are giving rise to many organisms through this formation of internal buds which are called as gemmules. Okay, ma'am. अभी वेजिटेटिव प्रोपगेशन वर्ड से क्या समझ में आ रहा है. वेजिटेटिव प्रोपगेशन मतलब क्या है.
when reproduction is taking place through vegetative parts. Now here the vegetative parts are nothing but those are root, stem, leaves or bud. Then though that reproduction is called as vegetative reproduction. वो reproduction को हम लोग क्या बोलेंगे? Vegetative reproduction. When the reproduction is taking place through vegetative parts, which is root, stem, leaves or bud, that time that reproduction is called as vegetative reproduction. And जो new plants form होते हैं ना, they are genetically identical to their parents. इसका मतलब क्या है? सिंपल मैं एक एग्जांपल देती हूँ. आप लोग ने आलू देखा, आलू उसके ऊपर क्या आता है? बर्ड आता है. आलू के ऊपर क्या आता है? बर्ड. और वो बर्ड बाद में क्या होता है? स्प्राउट या जर्मिनेट होता है. और हमने अगर गलती से वो आलू को सॉइल में डाल दिया तो क्या होगा? नया प्लांट आ जाएगा ना. यस और नो? ओके, लेट मी शो यू अ डायग्राम. यू हैव हर्ड आलू को, एक आलू है, ठीक है. इफ दिस इज द पोटैटो, these are the numerous buds on the surface. Yes or no? These buds, they will germinate. ये buds क्या होंगे? germinate होंगे. मतलब सपोज अगर किसी ने क्वेश्चन मुझे ये पूछा, नाजरीन ने, नाजरीन एक बर्ड, एक आलू के ऊपर कितने बर्ड दिखते हैं आपको बेटा? मैनी बर्ड्स, बहुत सारे होते हैं मैम. हाँ, सपोज चलो 5 बर्ड है एक आलू के ऊपर, एग्जाम्पल है. अभी 5 के 5 जर्मिनेट होके 5 नए प्लांट्स देंगे क्या आपको लगता है? ऐसा होगा तो फार्मर की तो पार्टी हो गई ना. अगर एक आलू से उसको 5-5 नए प्लांट मिलेंगे तो ऐसा नहीं होता. अगर इसके ऊपर ना 5 बर्ड्स है ना, तो क्या होगा? उसमें से कोई भी एक बर्ड स्प्राउट होगा. ओनली वन बर्ड इज गोइंग टू जर्मिनेट बाय सप्रेसिंग द स्प्राउटिंग ऑफ अदर बर्ड्स. दूसरे बर्ड्स का स्प्राउटिंग नहीं होगा. ठीक है, दूसरे बर्ड का स्प्राउटिंग नहीं होगा. तो अभी गणेश नेगी बोल रहा है, आई एम एन एजुकेटेड फार्मर. गणेश नेगी माइक अनम्यूट करो. यस मैम. मैंने अभी लास्ट सेंटेंस क्या बोला? एक आलू के ऊपर 5 बर्ड्स है तो क्या होगा उसे? सो अगर उसको सॉइल में डालेंगे तो वो ये रिप्रोड्यूस होएगा. तो 5 नए प्लांट आएंगे कि क्या होगा? मैंने क्या बताया डियर अभी? मैम नए ये ग्रो करेंगे ना. Anybody would like answer? Please unmute yourself. यश ओनली पवार. वन. ओके, नाजरीन ने बोल दिया. मैम 5 बर्ड सारे थे के सारे गणेश. नहीं होंगे, वन ऑफ द होगा. साक्षी देखो, 5 बर्ड है बट एक ही बर्ड स्प्राउट होता है अंडर फेवरेबल कंडीशन. क्यों? क्योंकि एक बर्ड स्प्राउट होगा ना तो उसको ग्रो करने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए. इट वुड नीड न्यूट्रिशन. वो कहाँ से लेगा? दैट न्यूट्रिशन विल बी टेकन फ्रॉम द पोटैटो. कहाँ से लिया जाएगा? फ्रॉम द पोटैटो. तो अगर सोचो पांचों के पांचों स्प्राउट होंगे तो न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा? तो इस करके ओनली वन बर्ड इज गोइंग टू स्प्राउट and it is going to suppress the sprouting of other buds. अभी a farmer which is educated, which I was expecting Ganesh Negi to be, तो वो क्या होगा? वो कट करेगा ये आलू के टुकड़े को into 4 parts. Each टुकड़ा which will contain only one bud. और अभी वो सॉइल में डालेगा तो अभी कितने प्लांट्स मिलेंगे? 4. वेरी गुड. समझा आपको? बट अगर मैम रिपीट. ओके, आई विल रिपीट. कहाँ से रिपीट करूं बेटा? पूरा स्टार्टिंग से एक ही बर्ड स्प्राउट होगा वहां से या पूरा? ये बर्डिंग वाला ही पार्ट जो कट करने के बाद आपने जो बोला ना, ओके, वो वाला. कट करने के बाद उसको 4 पीसेस में कन्वर्ट कर दिया ना. दोस 4 पीसेस आर गोइंग टू गिव राइज टू 4 न्यू प्लांट्स. इट इज गोइंग टू गिव राइज टू 4 न्यू प्लांट्स. अभी क्वेश्चन ये आ रहा है कि एक एक पूरा का पूरा आलू डाल रहे हैं तो उससे 1 प्लांट ही मिल रहा है. बट उसको कट कर रहे हैं तो 4 डिफरेंट पार्ट्स में, तो वी आर गेटिंग 4 न्यू प्लांट्स. बट दोनों में बहुत डिफरेंस है. जब भी
पूरा का पूरा आलू वो सॉइल में डालते हैं, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं नेचुरल, दैट इज नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। बट अगर आलू को मैंने कट कर दिया इनटू 4 पीसेस, तभी वो नेचुरल नहीं रहेगा, वो क्या बन जाएगा? It is going to become which process? It is going to become artificial vegetative propagation. Am I clear? तो डिफरेंस समझा नेचुरल और आर्टिफिशियल में? पूरा का पूरा आलू उठाया, उसको सॉइल में डाल दिया, उसमें से कोई भी एक ही बर्ड स्प्राउट हुआ और नया प्लांट मिला, दैट विल बी कॉल्ड एज नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। बट व्हेन आई एम कटिंग इट इनटू पीसेस एंड देन पुटिंग, एंड उससे हम लोग को 4 नया प्लांट्स मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल। सो ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन में वी कैन हैव नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। अभी मुझे बताओ, मैं सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ, जिसको आंसर मालूम है ना वो हैंड रेस करेगा या तो थम्स अप करेगा ऐसे, ओके? सो अगर ना रोज है, रोज उसका प्लांट ग्रो करने के लिए कुछ लोगों ने सीड से ग्रो किया, बट सम पीपल हैव टेकन पार्ट ऑफ लिटिल पार्ट ऑफ दी स्टेम, स्टेम का ऊपर का पार्ट कट किया और उसको सॉइल में डाला। अभी दोनों भी केस में न्यू प्लांट्स मिलेंगे, बट कौन सा बेटर है और कौन सा करना चाहिए और कौन सा नेचुरल है कौन सा आर्टिफिशियल है? स्टेम बोलने ना। पार्ट इज नेचुरल। नाजिन मेरा एक्सप्रेशन देखा? सीड से ग्रो करे ना डियर, सीड से ग्रो करे, दैट टाइम इट इज कॉल्ड एज नेचुरल। और जब इस स्टेम को कट करके सॉइल में डाल रहे हैं तो वो आर्टिफिशियल है ना, वो कटिंग किया ना, कटिंग, दैट इज नॉट नेचुरल, उसमें कटिंग किया है, दैट इज व्हाट, दैट इज आर्टिफिशियल। समझ में आ रहा है डियर आपको? यस और नो? नाजरीन आपने क्या लिखा है चैट बॉक्स में, समझ में नहीं आया, माइक अनम्यूट करके प्लीज बोल दो। मैम रूट से मैंने रूट नहीं बोला ना बेटा। नहीं मैम, वो स्टेम अंदर रहेगा ना सॉइल के, तो वो नेचुरल होगा ना, जो अंदर से होगा उगेगा। अच्छा मैं आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करती हूँ, पहले आपकी स्क्रीन पे जो दिख रहा है ना, द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैन टेक प्लेस बाय रूट। रूट पे जो बर्ड्स रहते हैं, बर्ड्स, बर्ड्स जैसे स्वीट पोटैटो के ऊपर बर्ड्स रहते हैं आलू की तरह, एस्पैरिगस आल्सो हैज गॉट बर्ड्स, दहलिया हैज आल्सो गॉट बर्ड्स। लीफ से होगा, तभी लीफ पे भी क्या होते हैं, बर्ड्स होते हैं, लाइक ब्रायोफाइलम। ये अगर हमारे पास ब्रायोफाइलम का लीफ है, इफ दिस इज आवर ब्रायोफाइलम लीफ, इससे क्या ग्रो हो रहे हैं, ऐसे बर्ड्स ग्रो हो रहे हैं। दीज बर्ड्स आर कॉल्ड एज एपीफाइलस बर्ड्स, और दोज बर्ड्स आर कॉल्ड एज पोलर बर्ड्स। इन बर्ड्स को क्या बोला जाता है? दीज बर्ड्स आर कॉल्ड एज एपीफाइलस बर्ड्स, और दे आर कॉल्ड एज पोलर बर्ड्स। ये जो एपीफाइलस बर्ड्स या पोलर बर्ड्स रहते हैं, दे आर गिविंग राइज टू न्यू, आपको दिखाती हूँ, बोलूँ, दी राइज टू अ न्यू लीफ। स्टेम से रहेगा तो हमारे पास एग्जांपल है, हल्दी है, आलू है, टर्मरिक, आलू, ऑनियन, तो दिस इज रिप्रोडक्शन बाय स्टेम। ये सब नेचुरल है क्योंकि इन सब में ना, इन सब में क्या होता है, अच्छा नेचुरल में क्या क्या होता है? रुको, किसी ने तो बहुत बड़ा लेटर लिखा है मुझे यहाँ पे। मैम एक आलू में 5 बर्ड है और उसको सॉइल में डालेंगे तो वो 5 बर्ड के न्यूट्रिएंट्स को तो एब्जॉर्ब करके एक प्लांट बनेगा, लेकिन वही आलू को 4 पीस में कट करेंगे, 4 प्लांट बनाएंगे, तो वो लोग का न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा? वेरी नाइस। अरकम, न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा? आप कुछ डालते हो ना जिसको फर्टिलाइजर बोलते हैं, यस और नो? इतना बड़ा क्यों लिखा, माइक अनम्यूट करके बोल देते ना बेटा। ओके अभी ये जो आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे ना, दीज आर आर्टिफिशियल मेथड्स
इसमें क्या दिख रहा है? कटिंग। कटिंग मतलब क्या होता है? यश पवार माइक अनम्यूट करो। यस मैम। ठीक है, यश पवार अपने फ्रेंड के घर गया, अभी फ्रेंड है जय सावंत। उसने जाके देखा कि जय सावंत के पास इतने सारे रोजेस रहते हैं, हर रोज किसी ना किसी को देने के लिए, येलो कलर, व्हाइट कलर, रेड कलर। एंड उसका सीक्रेट जाके पता चल गया, किसको? यश पवार को। क्या? उसके बालकनी में इतने सारे रोज प्लांट हैं। तो यू वंडर्ड हाउ विल आई गेट सच रोज प्लांट्स। तो आपने क्या बोला? मुझे भी चाहिए इतने सारे रोज प्लांट। कितने का तूने खरीदा? एक रोज प्लांट कितने का तूने खरीदा? तो जय सावंत बोला, रुक, मुझे फ्री में मिला, अभी मैं तुझे भी फ्री में देता हूँ। क्या किया? उसने सबके अलग अलग स्टेम, ध्यान से सुनो हाँ, उसने सबका ऊपर का पार्ट कट किया, स्टेम का अपर पार्ट कट किया। ये जो अपर पार्ट था ना, टिप वाला पार्ट था ना, ये पार्ट कट किया। क्यों उसने ये टिप वाला पार्ट कट किया? क्योंकि इसमें ना मेरिस्टेमेटिक सेल्स थे। दीज टिप were containing meristematic cells which had the ability of cell division. तो जब भी उसने मेरिस्टेमेटिक सेल्स कट करके दिए ना, तो उसी से क्या मिला? न्यू प्लांट मिला। तो उसने क्या किया? ये टिप में से पार्ट्स कट किए। ये जो टिप में से पार्ट्स है ना, ये पार्ट्स को क्या बोला जाता है? दीज आर कॉल्ड एज मेरिस्टेमेटिक सेल्स। इनको मेरिस्टेमेटिक सेल्स बोलते हैं। ये पार्ट कट किया एंड यश को दिया, और बोला अलग अलग कुंडी में अलग अलग जाके लगाना। कुछ दिन बाद क्या हो गया? यश को भी मिल गया। ठीक है, क्या मिला? कौन सा प्लांट मिला? रोज का प्लांट मिला। तो स्टेम कटिंग से विच प्लांट्स वी कैन गेट? वी कैन गेट प्लांट्स ऑफ रोज, बोगनवेलिया। रोज का मिलेगा, और किसका मिलेगा? बोगनवेलिया। with the help of leaf cutting we can have examples like sansevieria, and with the help of root cutting we can get the example like blackberry. तो कटिंग वर्ड का मतलब क्या है? कटिंग मीन्स इट इज अ स्मॉल पीस ऑफ एनी वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट। स्मॉल पीस ले रहे किसका? ऑफ एनी वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट हैविंग वन और मोर बर्ड्स। क्या रहेंगे उसमें? वन और मोर बर्ड्स। तो यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है आपको कटिंग में क्या क्या यूज किया है? शार्प एंड क्लीन ब्लेड। और उसको कहाँ पे डाला है? न्यू सॉइल में डाला है। तो उससे क्या मिलेगा? वील गेट एग्जैक्टली सेम प्लांट। ये कौन सा मेथड है? आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन है। द स्मॉल पीस ऑफ एनी वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट हैविंग वन और मोर बर्ड्स इज यूज्ड फॉर प्रोपगेशन। तो इसमें कौन आ रहा है? स्टेम कटिंग, लीफ कटिंग, रूट कटिंग। स्टेम कटिंग के एग्जाम्पल कौन है? रोज, बोगनवेलिया। लीफ कटिंग का एग्जाम्पल है सेंसीवियारा, एंड रूट कटिंग का एग्जाम्पल कौन है? ब्लैकबेरी। Let us move to the next artificial method. Very, very, very important answer for board exam. मैं इसको blank slide पे सिखा रही हूँ। Next answer is very, very, very important. देखते हैं ये वाला आंसर। यस, मनी प्लांट जो बेल है ना, उसको भी हम लोग स्टेम कटिंग से हम लोग को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट जो हम लोग को देखना है ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विच इज कॉल्ड एज ग्राफ्टिंग। वो कॉन्सेप्ट को क्या बोला जाता है? ग्राफ्टिंग। एवरीबडी लिसनिंग नाउ। इसमें करते क्या है? ध्यान से देखो हाँ। ये ग्राफ्टिंग में वी आर टेकिंग ग्राफ्टिंग में वी आर टेकिंग पार्ट्स ऑफ टू डिफरेंट प्लांट्स। ये जो ग्राफ्टिंग है ना, इस प्रोसेस में क्या किया जाता है? वी आर टेकिंग पार्ट्स ऑफ टू डिफरेंट प्लांट्स एंड वी आर joining them in such a way that they unite as grow as one single plant. So what is done is, इसका डेफिनेशन क्या है? इसका डेफिनेशन ये है, इट इज अ टेक्निक ऑफ joining parts of two different plants. It is a technique of joining parts of two different plants. We are joining parts of two different plants in such a way
in such a way that they unite and they grow. क्या होगा? They unite and they grow as a single plant. वो unite होके क्या grow करेगा? And grow as a single plant. तो इसको बोला जाता है ग्राफ्टिंग। अभी ग्राफ्टिंग का मीनिंग क्या है? सपोज हमारे पास दो प्लांट्स हैं। ये देखो, ये प्लांट मैंने जो बनाया, दिस इज प्लांट कॉल्ड एज ए। ये प्लांट को हम लोग बोलेंगे दिस इज माय प्लांट ए। सपोज ये जो प्लांट ए है ना, दिस आई हैव टेकन ऑफ मैंगो विच इज प्रोड्यूसिंग स्वीट मैंगोज। ये जो ए प्लांट है ना, इसको क्या बोलेंगे? दिस इज प्रोड्यूसिंग स्वीट मैंगोज। मैंगो का सीजन चल रहा है ना, तो नन अदर देन I have a good example only of mango, and sweet mangoes are more preferred because whatever we get is very sour right now, right now. Okay, this is my A plant which is producing very sweet mangoes, and then I have another plant which is the B plant. अब ये B plant को ना हम लोग बना रहे हैं in red color. That is the B plant which is producing, अरे रे बहुत पतला हो गया ये B plant. Okay, this is my B plant which is producing disease and insect resistant mangoes. तो हम लोग को क्या चाहिए रहेगा? जो मैंगोज है ना, वो स्वीट भी हो और अंदर से खराब भी नहीं हो। ठीक है, आधा खराब बोले को थोड़ी खा के मतलब है, अगर स्वीट होगा तो यहाँ पे सेकेंड क्वालिटी इज विच आर डिजीज रेजिस्टेंट मैंगोज। सो वी ह्यूमंस आर सेल्फिश, करेक्ट? हम लोग को क्या चाहिए रहेगा? वी वुड वांट बोथ द कैरेक्टर्स टू गेट इन वन प्लांट। तो व्हाट वी डू इज, पहले वाले का क्या करते हैं हम लोग? यहाँ पे कट करते हैं। वी आर डूइंग द कट ओवर हियर। सपोज यहाँ पे कट किया, तो इसका ये नीचे वाला पार्ट लिया जाएगा। वी आर गोइंग टू टेक दिस पार्ट। कौन सा पार्ट लिया है? दिस पार्ट इज टेकन। ये पार्ट को अलग कर दिया मैंने, ये पार्ट हटा दिया। तो ए प्लांट दिख रहा है आपको? ए प्लांट का कितना पार्ट लिया है? ओनली दिस पार्ट इज टेकन, द लोअर पार्ट इज टेकन। पार्ट ऑफ द ए प्लांट विच इज रूटेड इन द सॉइल, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज द स्टॉक। ये पार्ट को क्या बोला जाएगा? स्टॉक। और इसके ऊपर क्या लगाया जाएगा? इसके ऊपर ये जो बी प्लांट है ना, इसका अपर पार्ट लगाया जाएगा। मतलब ये जो बी प्लांट है ना, इसका ये अपर पार्ट लगाया जा रहा है। दिख रहा है आपको? ज्वाइन करने की कोशिश कर रही हूँ मैं, रेड कलर वाले को ज्वाइन कर रही हूँ। दिख रहा है आप लोग को? यस और नो? दिख रहा है आप लोग को ना? यस। तो क्या दिख रहा है हम लोग को? दिख रहा है जो पार्ट रूटेड इन दी सॉइल था ना, उसको स्टॉक बोलते हैं। और जिसको स्टॉक के ऊपर लगाते हैं, जो बी वाला पार्ट मैंने लगाया ऊपर, उसको क्या बोला जाएगा? दैट पार्ट विल बी कॉल्ड एज कीओन। दैट पार्ट इज कॉल्ड एज कीओन। मीन्स यहाँ पे दोनों प्लांट्स को यूनाइट कर रहे हैं। तो अपना डेफिनेशन क्या था? डेफिनेशन था, इट इज अ टेक्निक ऑफ ज्वाइनिंग पार्ट्स ऑफ टू डिफरेंट प्लांट्स। कौन थे टू डिफरेंट प्लांट्स? एक था ए प्लांट, दोनों भी मैंगो था। ओके, so grafting can be of the same species also, or it can be of other species also. So it is a technique of joining parts of two different plants in such a way दोनों unite होंगे and both are going to grow as a single plant. दोनों भी unite होके कैसे grow होंगे? They are going to grow as a single plant. अभी जो grafting है ना, कौन से टाइप का बन सकता है? This grafting can be called as tongue और chisel grafting, जिसमें क्या करते हैं, ऐसा अगर कट मारा ना तो इसको टंग और चिजल, ओके आई विल ड्रॉ हियर। ऐसा कट मारा ना तो इसको टंग या तो चिजल ग्राफ्टिंग बोला जाता है। ये नीचे वाला ए है, दिस इज माय ए विच इज कॉल्ड एज स्टॉक, एंड जो ऊपर बी लगा है उसको क्या बोलेंगे हम? स्कियोन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्टॉक एंड स्टॉक? का मतलब क्या होता है? जो रूट रहता है, जो रूटेड रहता है सॉइल में, the one which is rooted in the soil is called as stalk, और जो ऊपर दूसरा हम लोग ने लगाया उसी को क्या बोलेंगे हम लोग? scion. So it is a technique of joining two different parts of two different plants in such a way that they unite and they grow as a single plant. So इसको कौन सा grafting बोलेंगे? This is called as tongue grafting or it is called as chisel grafting. It is called as tongue grafting or it is called as chisel grafting.
इसको टंग ग्राफ्टिंग बोलेंगे, नहीं तो इसको बोलेंगे चिजल ग्राफ्टिंग। सेकेंड वाला जो आएगा ना, दैट इज कॉल्ड एज वेज ग्राफ्टिंग। उसमें वी शेप कट बनाते हैं। ये सब मैं एक्स्ट्रा बता रही हूँ फॉर नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके सिलेबस में नहीं है। ऐसा वी शेप कट रहेगा ना, तो उसको कौन सा ग्राफ्टिंग बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड एज वेज ग्राफ्टिंग और वी शेप ग्राफ्टिंग। कौन सा ग्राफ्टिंग है? वेज 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 ग्राफ्टिंग विच इज कॉल्ड एज वी शेप कट मारते हैं ए और बी में। अभी लास्ट वाला है क्राउन ग्राफ्टिंग। क्राउन ग्राफ्टिंग में क्या होता है? दिस इज आर स्टॉक, यू कैन सी दिस स्टॉक इज हैविंग अ बिग डायमीटर। ये जो ए है ना, ए मतलब स्टॉक है विच इज रूटेड इन दी सॉइल। स्टॉक के लिए क्या वर्ड याद रखने का? दी पार्ट विच इज रूटेड इन दी सॉइल, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्टॉक। अभी यहाँ पे स्टॉक का ना जो डायमीटर ना वो बहुत बड़ा है, और जो यहाँ पे स्कियोन है ना, वो बी वाले जो लगाए हमने, उनका डायमीटर क्या है? बहुत ही कम है। उसका डायमीटर क्या है? बहुत ही कम है। तो क्या बोल सकते हैं हम लोग इसके बारे में? दिस इज कॉल्ड एज क्राउन ग्राफ्टिंग। समझा इसको क्राउन ग्राफ्टिंग क्यों बोल रहे हैं? इट इज लुकिंग लाइक अ क्राउन। ऐसे क्राउन रहता है ना, क्राउन उसकी तरह दिख रहा है। ये सोनो कोई सुनी नहीं? मैम पूरा नहीं कट करेंगे तो क्या होगा? क्या नहीं कट करेंगे बेटा? मतलब इसमें पूरा कट कर रहे हैं ना, अगर हाफ कट करके डालेंगे तो? हाफ ही कट करते हैं ना। जो नीचे वाला पार्ट रहता है ना, जो रूटेड रहता है सॉइल में, उसको स्टॉक बोलते हैं। और जो स्टॉक के ऊपर का पार्ट लगाते हैं उसको स्कियोन बोलते हैं। अभी तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बाकी है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ये दोनों पार्ट ज्वाइन कैसे होते हैं, ये दोनों प्लांट का फ्यूजन कैसे होता है। ये किसी के दिमाग में आया नहीं क्वेश्चन? ये दोनों प्लांट ज्वाइन कैसे होते हैं? फेविक्विक से ज्वाइन करते हैं क्या? अच्छा, ये दोनों भी पार्ट्स ज्वाइन कैसे होते हैं? दैट इज गेटिंग ज्वाइन विद द हेल्प ऑफ, इट इज गेटिंग, पहले उन लोग को ना ऐसे ज्वाइन करके ना ऐसे टाई किया जाता है, बांधा जाता है, एंड बाद में उसको सील किया जाता है बाय यूजिंग ग्राफ्टिंग वैक्स, जिससे एयर अंदर नहीं जाएगा। तो क्या होगा? जो दोनों भी सेल्स है ना, उनके वास्कुलर टिश्यूज कंबाइन होते हैं। कौन कंबाइन होता है? वास्कुलर टिश्यूज, जिसको जाइलम एंड फ्लोएम बोलेंगे। दोनों का वास्कुलर टिश्यूज कंबाइन होता है, दोनों का जाइलम और फ्लोएम कंबाइन होता है। तो उससे क्या होता है? दोनों के बीच में एक्सचेंज ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स होता है। तो दोनों के बीच में एक पाइपलाइन बन जाता है, कनेक्शन बन जाता है। तो क्या हो जाता है? बिकॉज ऑफ दैट व्हील से दोनों कंबाइन होके क्या मिल रहे हैं? वी आर गेटिंग अ न्यू प्लांट। क्लियर है सबको? ओके जानवी, क्राउन वाला आपने बोला रिपीट करने, क्या नहीं समझा आपको क्राउन वाले में? वो जो नीचे का पार्ट रहता है, जो रूटेड रहता है सॉइल में, उसको क्या कहते हैं हम लोग? जानवी तिवारी? दैट पार्ट इज कॉल्ड एज स्टॉक। बेटा स्टॉक का स्पेलिंग रॉन्ग है, STOCK, उसको स्टॉक बोलते हैं। और जो स्टॉक के ऊपर दूसरा पार्ट हम लोग लगाते हैं उसको स्कियोन बोलते हैं। तो क्राउन ग्राफ्टिंग में ना, जो नीचे का स्टॉक रहता है ना, उसका डायमीटर बहुत बड़ा रहता है, और ऊपर जो स्कियोन लगाते हैं उसके डायमीटर बहुत छोटे, तो एक क्राउन जैसा बन जाता है। बताया था ना मैंने अभी आपको, हाँ या ना? मेरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये था कि आपको समझा ये दोनों प्लांट्स ज्वाइन होके एक कैसे बन जाएंगे। हाउ विल बोथ दी प्लांट्स ज्वाइन एंड फॉर्म वन? कितने लोग को ये समझा था दोनों प्लांट्स ज्वाइन होके वन कैसे बनेंगे? और ओके, दोनों प्लांट्स ज्वाइन होके वन कैसे बनेंगे? बाय फ्यूजन ऑफ, दोनों प्लांट्स फ्यूज होके वन कैसे हो जाते हैं? बाय फ्यूजन ऑफ देयर कैम्बियम। यस नाजरीन बोलो बेटा। ओके, दोनों प्लांट्स को ना पहले टाई किया जाता है, बाद में सील करते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ्टिंग वैक्स। दोनों प्लांट्स ज्वाइन होके वन हो जाते हैं।
by fusion of their cambium, by fusion of their cambium. अभी वो कैम्बियम मतलब क्या होता है? जाइलम एंड फ्लोएम. कैम्बियम वर्ड का मतलब क्या है? कैम्बियम का मतलब है जाइलम और फ्लोएम. अभी जब ये जाइलम और फ्लोएम फ्यूज होता है तो बोथ दी प्लांट्स आर फ्यूजिंग टू फॉर्म वन. जब भी उन लोग का फ्यूजन होता है ना कैम्बियम का, तो क्या होता है? तो दे आर ज्वाइनिंग टू फॉर्म वन. So because of that, we can say that they are growing as one single plant. So इसका definition सबको very clear है. It is a technique of joining parts of two different plants in such a way that they unite and they grow as a single plant. So this completes our topic on grafting. I'll show you the diagram. यहाँ पे diagram देखो, grafting का diagram. You can see grafting का diagram. So यहाँ पे दिख रहा है two parts are joined in such a way that they grow as one single plant. That they grow as one single plant. In this method, part of the stem containing more than one bud, जो हम लोग बोलेंगे जो part of the stem है ना containing more than one bud which is called scion is joined to a rooted part. वो जो rooted part रहता है ना उसको क्या बोलते हैं? stalk. जो पार्ट रूटेड रहता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्टॉक. whereas budding is also called budding के साथ भी होता है ग्राफ्टिंग, जिसको बड ग्राफ्टिंग बोलते हैं, जिसमें क्या होता है अपना स्टॉक वो ही रहेगा, वो जो बी प्लांट इंसर्ट कर रहे थे ना उसकी जगह पे बर्ड लगाएंगे. दैट इज कॉल्ड एज बड ग्राफ्टिंग. इसका मतलब क्या है? देखो बड ग्राफ्टिंग वर्ड का मतलब, बर्ड ग्राफ्टिंग वर्ड का मीनिंग ये है दैट ये जो अपना प्लांट था ना, ये जो प्लांट उसमें ये अपना स्टॉक वाला प्लांट है. देखो सपोज दिस इज आर प्लांट, जिसको क्या बोलेंगे हम लोग? दिस इज दी स्टॉक वाला प्लांट. ए प्लांट है, ए प्लांट, ए वाला प्लांट. उसमें क्या करते हैं? दिख रहा है डायग्राम में, ये टी शेप का कट मार रहे हैं. कौन सा शेप का कट मार रहे हैं? टी शेप. इंसिजन या कट मार रहे हैं. इसमें क्या कर रहे हैं? जो बी प्लांट है, बी प्लांट, उसका क्या डाल रहे हैं? बड डाल रहे हैं. वी आर पुटिंग अ बड with a small piece of bark. उसमें क्या डाल रहे? बड डाल रहे with a small piece of bud. That is called as bud grafting. मतलब क्या है इसमें? इसमें दो प्लांट्स को नहीं ज्वाइन कर रहे हैं. इसमें वो ए प्लांट देखो, ये पूरा का पूरा है ऊपर. ये जो ए प्लांट है ना, ये पूरा का पूरा है ऊपर. इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग? ए प्लांट में ना एक छोटा सा कट मार रहे हैं. कौन सा कट मार रहे हैं? टी शेप कट, जिसको इंसिजन बोल रहे हैं. और उसमें क्या डाल रहे हैं? बड डाल रहे हैं with a small piece of bark. वो किधर ज्वाइन हो रहा है? इट इज ज्वाइनिंग ऑन दी स्टॉक. और इससे क्या हो रहा है? दोनों भी कैरेक्टर्स कहाँ पे आ रहे हैं? इनटू दी प्लांट. क्लियर है सबको? यस और नो? इसके एग्जाम्पल्स क्या है? एप्पल, पेयर, रोज. आपको क्या याद रखना है? बस आपको सिर्फ याद रखना है दो प्लांट्स को ज्वाइन करते हैं इन सच अ वे क्या वो लोग ज्वाइन होके विल गेट वन सिंगल प्लांट. जो नीचे वाला पार्ट रहता है प्लांट का, दैट इज कॉल्ड एज स्टॉक. और जो उसके ऊपर इंसर्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? स्कियोन. और अगर स्कियोन दूसरे प्लांट की जगह पे हमने बड यूज किया तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? दैट इज कॉल्ड एज बड ग्राफ्टिंग. उसको क्या बोलेंगे हम लोग? बड ग्राफ्टिंग. क्लियर है? चलो, I have already extended with time. Sorry for the delay. We can stop at this point. आपके notes send हो जाएंगे मैम के पास. You did not worry. Have a very good night, everybody. Thank you for patient hearing. And welcome again to 12th standard. थैंक आपको यू जो मैम. आपको जो नोट्स आएंगे ना उसका रिवीजन करके आपको नेक्स्ट टाइम बैठना है. बिकॉज एज आई स्टार्ट आई विल बी आस्किंग क्वेश्चंस फर्स्ट. सुन रहे हैं? प्लीज लीव करने से पहले सुन लो. जो आपको नोट्स मिलेंगे उसको रिवाइज करके नेक्स्ट लेक्चर में बैठना. बिकॉज वील हैव अ क्विक रिविजन एंड देन मतलब आपको क्वेश्चंस पूछूंगे एंड देन वी विल कंटिन्यू. थैंक यू नाजरीन फॉर दोस क्वेश्चंस एंड ऑल. दैट वाज वेरी नाइस. चलो बाय ऑल.